So let's start it from the beginning, like how everything got started. एंड कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है मैंने जस्ट कि मैं वीडियो में बोलते बोलते भूल ना जाऊँ. सो फ्यू पॉइंट्स आर देयर एंड लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. कम्प्लीटली अनस्क्रिप्टेड वीडियो, कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट मैंने नहीं बना रखा है, जस्ट मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किया है दैट व्हाट आर द पॉइंट्स आई हैव टू से इन दिस वीडियो. So let's start out. So how this trading and all like came into my life. So I was in 12th class. I was in Ranchi at that time, and COVID period. In the COVID period, everything got locked down. I was in my home at that time. So I started learning about the trading at that time. After that, 12th and all got completed. I moved out to Dehradun for my college, and I was in college. I think that for the first semester, when I was in first semester, I was not so serious related to trading, related to everything. But after my first semester, I just got serious and I started taking trading in a serious way. I started doing it for the full time. I think that I left going to the college. I started doing it whole day. I used to do that time. I used to do option buying and made a quite good loss because see, एक कॉलेज स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा कैपिटल होता नहीं है, सो कितने ही लॉस वो मैक्सिमम करेगा. आई लॉस्ट अराउंड आई थिंक सो ओवरऑल पूरे सीखने में पूरा मार्केट जर्नी में आई थिंक 50,000 रुपीज़ आई लॉस्ट समवेयर इन ऑप्शन बाइंग एट दैट टाइम. तो ठीक है. सो उसके बाद एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. आई वॉज डूइंग गुड इन ट्रेडिंग. आई वॉज डूइंग गुड इन कॉलेज. ऑल द इवेंट्स, ऑल द कॉम्पिटिशन्स जो भी होते थे, आई यूज टू पार्टिसिपेट. आई हैव वॉन मेनी मेडल्स इन माई कॉलेज. So attendance was never an issue for me in my college. I will tell you the reason why. So the first reason was like I used to participate in a lot of activities. कुछ भी डांस हो रहा है वो I'll be there. कुछ भी like होस्ट हो रहा है, कुछ इवेंट होस्ट करना I'll be there. कुछ स्टेज इवेंट हो रहा है I'll be there. So the professors were sure that if this boy is not in the class, then like he would not be wasting his time. He would be in some work जो कि productive है, either of college work or other of his own, but he will not waste his time. So the perception was like that. And one more thing I would like to share, that when I was in college, many of the professors like they were aware that I do trading. I was in the market. I was in the stock market and stocks and all everything. So even two of the professors, I remember two of the professors, I recommended them few stocks. I asked them to open the account and I just made them invest some money out there in the market. So the people were aware like I do trading and stock market. If I'm not like in the college for 9:15, since 9:15 10:30 morning, then I would be in my room and I would be watching the market. So the perception was like that. So everything was going well. And I think that it was the last semester of my college, right? Last semester, I was in the last semester of my college and everything was going well. And in my college, the last semester, it is like if you get a job, if you get placed, then you can take NOC in any of like कभी भी आप ले सकते हो NOC. उसके बाद you can leave the college. Like attendance was not mandatory. उसके बाद आप you can do whatever you want. So I think that my friend got placed first. So after that I was just looking for a job, but I was looking for a job in a field of trading, right? In a field of trading, in a field of stock market. I was looking a job related to that so that I could be around the people who talks about market. The main motive was कि अगर मैं job भी कर रहा हूँ, so like at that time the main purpose was that कि just to get the NOC from the college, I want a job so that फिर से अगले 4-5 महीने मुझे college ना जाना पड़े and I could invest that time in a good way. ठीक है. So I think I remember I went to one of the brokerage firm, or you could say trading firm, or in Dehradun itself. I just got a job. First interview, got a job, and उसके बाद I think that March 15 was the date. मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई एंड 1st of April I joined that firm. I think that since March 15 I stopped going to the college. मैं कॉलेज आना बंद कर दिया था. I shifted from where my college was. I shifted to the main city of Dehradun. ठीक है. And I think so 40 to 45 days I went to that trading firm, and after that April 30 was the date. I just completed my month somehow and I just left the job. And the reasons I'll share in the other video. The reasons was much like काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं that अगर आप ट्रेडिंग फर्म में काम करते हो तो you will learn trading and all, but it is nothing like that. I'll completely share all those things why I left my job in another video, right? So this video ये वीडियो को मतलब कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो पे. So everything was going well and I left the job. At that point of time I think I was very low क्योंकि वो जो discontinue हो गया था ना. I was doing good in college, I was doing good in trading, everything was going well. I was planning to launch my YouTube and everything was going good.
उसके बाद वो जो डिसकंटिन्यू आया, लाइक when I was doing job in my Dehradun, I could not able to focus on my trading. I was not able to focus on anything. Whenever in the market hours, I used to be in my office. I don't used to, even I was not allowed to open my laptop. Even I was not allowed to check my phone. All these things were there in my office. So that कैसे भी करके लाइक वो 30 days आई रिमेंबर सम हाउ आई 30 days मैंने वो कंप्लीट किया. एंड आई एंड माई फ्रेंड we got placed in different companies. I and my friend, we both left the job same day. And after that मुझे याद है कि I came back to my home. And 1 month, I think so, around 1 month, 20-25 दिन मैं घर पे था. After that I moved out to the Delhi. I moved out to Delhi. And the reasons was very simple. देखो, I think that from my college days itself, the one of the thing which was most bothering me, that was asking money from my parents. I never wanted कि मैं पैसे मांगूँ. And I think March 15 was the last time I asked money from my parents when I was shifting to the Dehradun city. After that I never asked. No, once when I came back to my home after like resigning from my job, when I came back home, after that when I was moving to the Delhi after 20-25 days, I was not having money left in my pocket, so that I asked money from my parents. उसके बाद पैसे लेके I moved to Delhi. I moved out to Delhi with my friends. My friends were there. They were staying in a society over there. So they asked me, तुम आ जाओ भाई, तुम आ जाओ. Like मेरी mindset भी बहुत बुरी हो गई थी. I was very low, you could say that. I will not use some other words, but yeah, it was very low phase of my life. Like मुझे पता ही नहीं चल रहा था करूँ क्या भाई. जॉब छोड़ दिया. Everyone was doing job. They were planning to do MBA, but I was not. Like मुझे MBA करनी ही नहीं थी. I was not sure कि मुझे MBA करनी है, but I was sure कि मुझे ट्रेनिंग करना है related to market, related to YouTube वगैरह, इसमें कुछ करना है. So I think मैं जब दिल्ली मूव किया तो I was in very bad mindset phase, you could say that, very negative phase. तो वहाँ पे my friends, they are, आई वुड से वन थिंग भाई, मैं विश करूँगा कि जिसके भी लाइफ में फ्रेंड्स अच्छे होते हैं ना, दे विल, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो दे विल लाइक कम अक्रॉस ऑल दोज प्रॉब्लम्स, वो उसको पार कर जाएंगे. इवन माई फ्रेंड्स हेल्प मी. एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट मंथ आई वॉज इन दिल्ली. आई स्टेड ऑन माई फ्रेंड्स मनी. आफ्टर दैट उसके बाद समहाउ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो उस पॉइंट मैंने वीडियोस क्रिएट किया रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू न्यूरो साइंस, रिलेटेड टू हाउ यू फील, ऑल दोज सेट आई वाज लर्निंग अबाउट, आई वाज स्टडिंग अबाउट न्यूरो साइंस एंड ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक कि वो पता नहीं मैं क्या कर रहा था. आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट. मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं करूँ क्या. ठीक है. उसके बाद आई रिमेंबर कि मेरे फ्रेंड्स ने गाली दे के अच्छे से बोल के, भाई ट्रेडिंग करता था, सब कुछ करता था, उस पर आओ, वापस आओ. और टू बी ऑनेस्ट आई वॉज लाइक, वो जो 1-2 महीने थे ना, आई वॉज नॉट इवन चेकिंग माई लैपटॉप, क्या मार्केट हो रहा है, मार्केट ऊपर है नीचे. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल. पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता था. जस्ट बिकॉज कि वो 1 महीने जो जॉब में मैंने जो फेस किया था ना, लाइक 9 to 5, वो डिसिप्लिन, पता नहीं, लाइक इट वॉज हेल टू मी. So उसके बाद somehow I just got back to my trading. I just started giving 1 hour, 2 hours, started giving regularly. And उसके बाद फिर से everything got come to its place. सब कुछ ठीक हो गया. And I just started doing trading and all. But एक मैंने गलती किया था. I was having good capital when I was in Dehradun at that time. When I was in college, I was having good capital. ठीक है, अच्छा कैपिटल था. मैंने अपने अंकल से ले रखा था पैसे. मेरे घर का पैसा था, मेरा पैसा था. इवन many of my friends, उनके पैसे थे कुछ मेरे पास. तो I was having a good capital in lakhs. आई वॉज मैनेजिंग गुड कैपिटल. उसके बाद जब आई थिंक दैट वो जो मैं जॉब करने लगा, सो व्हेन आई गॉट डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द मार्केट, आई जस्ट रिटर्न ऑल दोज मनी. मैं एक चीज़ श्योर था भाई, अगर करना है तो फुली फोकस्ड होकर करना है, अच्छे से करना है. अगर नहीं करना है तो फिर मैं उनके पैसे लेके करूँ क्या. अगर बाई मिस्टेकली अगर लॉस हो जाता है या फिर आई कुड नॉट एबल टू जनरेट माई प्रॉफिट, उनके लिए जो प्रॉफिट जनरेट वो अगर नहीं कर पाया, सो इट डजंट क्रिएट एनी सेंस. तो मैंने सबके पैसे लौटा दिए थे. एंड उसके बाद मैं दिल्ली गया फिर. एंड दैट टाइम जो मेरे पैसे थे, मेरे सेविंग्स थे, दैट वाज विद मी. बट मेरे पास प्रॉपर ऐसे कुछ कैपिटल नहीं था, गुड कैपिटल नहीं था मेरे पास. सो अगेन आई स्टार्टेड आस्किंग, जिनके पास भी होता है इन्वेस्टर, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करे, जिनको मैं अपने प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, जो भी बैक टेस्टेड रिजल्ट्स थे, वो सभी दिखा के आई ट्राइड कि मुझे लाइक इन्वेस्टमेंट मिले. बट आई थिंक उस टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मिला था. नोबडी हैज़ गिवन मी द मनी टू मैनेज. एंड आई थिंक उसके बाद मैंने अपने जॉब, लाइक एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, ठीक है, ट्रेडिंग कैपिटल वगैरह से कर रहा था. आई वाज लाइक कमिंग बैक टू माय गुड माइंडसेट फेज. सो उसके बाद
लिविंग इन अ डेली, लिविंग इन अ 3 BHK फ्लैट, लिविंग इन अ सोसाइटी, प्रॉपर एक्सपेंसिव सोसाइटी, अच्छी जगह पे रहने में इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ लाइक एक मंथली एक्सपेंस होता है उसमें, ठीक है. So as I said that the one thing which was always bothering me was asking money from my parents. I think that many of us could relate to that. And उसके बाद भाई मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया दैट ब्रो, इफ़ यू लाइक वांट टू कंटिन्यू दिस, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद योर ट्रेडिंग, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद यूट्यूब और एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू डू टू सस्टेन, वो एक लेवल पे एटलीस्ट वो सस्टेन करने के लिए, वो चीज़ में अलाइव रहने के लिए, यू विल हैव टू अर्न समथिंग इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स. देन आई थॉट या यू आर राइट. सो आई स्टार्टेड अगेन लुकिंग फॉर अ जॉब एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब. आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब जिसमें मैं अपने ट्रेडिंग को भी मैनेज कर पाऊँ एंड आई कुड एबल टू जनरेट कुछ पैसे मुझे जॉब से भी मिल जाएँ, सो दैट आई कुड जस्ट लिव इन दिल्ली. मैं प्रॉपर नोएडा में वहाँ पे रह लूँ, जो भी वहाँ के मंथली एक्सपेंस थे उनको मैं मैनेज कर लूँ. So that I started looking for a job and somehow मुझे जिस चीज़ में जो करना था ना, मैंने सोचा है, मैंने लाइक जिसको भी मैंने एक आइडल मान के चला था that I have to work with him, like who is into trading, who is into coaching, basically who is at the stage, like who do all the things which are on the stage coaching people and everything. I just wanted to work with someone like that. So I started looking for someone and I started like I saw one job post related to that person itself in his group. And क्या हुआ मुझे नहीं पता, I just mailed him like I wanted to work with you and this is my portfolio and this something. उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया उसके पास, लाइक इंटरव्यू हुई वगैरह, उसने मुझे बोला कि ठीक है आप मेरे साथ काम कर सकते हो एंड ही वॉज गिविंग मी क्वाइट वेल मनी, अच्छा पैसा मुझे दे रहा था बिकॉज इट वॉज अ स्टार्टअप. It was not a big firm. I was in Delhi. It was a big firm, name firm. But when I was like working with that influencer person, he was giving me more money than that. And जो भी काम थे करने का, that was interesting to me क्योंकि वो related थे मेरे things के related, and by doing all those things, I was learning something new. ठीक है, तो like I started doing that job. उसके बाद first month obviously like आप start करते हो job करना, at the end of the month you are going to get the money. So फर्स्ट मंथ वो इट वॉज क्वाइट हार्ड बट ठीक है, हो गया, माई सैलरी के. उसके बाद सब कुछ लाइन प्लेस पे आ गया, ठीक है. आई वॉज गिविंग मनी, जो भी फ्लैट्स के एक्सपेंस थे वो मैं सब कुछ मैनेज कर लेता था एंड आई वॉज डूइंग ट्रेडिंग एज वेल. अब मैं ट्रेडिंग और जॉब दोनों कैसे मैनेज करता था, दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. कैसे अभी भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम डूइंग अ जॉब एंड आई कुड एबल टू जनरेट, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, आई कुड एबल टू जनरेट 4 to 5, 6, 7% के रेंज में एक अच्छी कैपिटल पे मैं मंथली प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा हूँ थ्रू द मार्केट. आई थिंक दैट इज़ नॉट बैड बिकॉज अगर आपके पास 10 लाख की कैपिटल है तो उस पर 6% माइट बी लुकिंग स्मॉल, बट अगर आपके पास 1 CR 2 CR की पोर्टफोलियो है, देन लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ 2 CR पोर्टफोलियो एंड if you are like getting 5 to 6% return monthly, then that is a huge amount, I believe. So that is the thing. और उसके बाद मैं जॉब करने लगा, एवरीथिंग आई वॉज डूइंग ट्रेडिंग. उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया. यूट्यूब तो काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था स्टार्ट करने का. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तभी से मैं प्लान कर रहा था यूट्यूब स्टार्ट करने का, बट आई कुड नॉट एबल टू गिव मच टाइम. आई वॉज नॉट सो सीरियस अबाउट इट. सो दिस वॉज द थिंग. उसके बाद कैसे मैं टाइम मैनेज करता हूँ अभी, द मेन पॉइंट इज़ दैट लाइक एंड लाइक अभी भी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से, क्लाइंट से बात करता हूँ, ठीक है. क्लाइंट्स जो कि प्रॉपरली ट्रेड करना चाहते हैं, वी हेल्प बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स टू ट्रेड अलॉन्ग विद देयर जॉब एंड बिजनेस इन अ स्ट्रक्चर्ड इन अ प्रॉपर वे. सो मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, व्हेन आई आस्क अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू आर फेसिंग इन योर ट्रेडिंग जर्नी, सो मेनी ऑफ अस से मी दैट टाइम मैनेजमेंट. मुझसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता है. I am doing good in my business, I am doing good in my job, but I could not able to do that with my job and business. I could not able to manage my personal life, professional life, and if someone is asking me to do trading as well, so that's being very difficult. Messy हो जाता है वो सब कुछ, सारी कुछ चीज़ें. तो दैट इज़ द रीज़न. सो आई थॉट कि भाई उसके ऊपर क्यों ना पर्टिकुलरली फोकस्ड होके अगर काम किया जाए. सो इज़ दैट पॉसिबल कि किसी तरीके से ऐसा किया जा सकता है दैट जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, एंड इफ दे जस्ट वांट टू जनरेट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम और पैसिव इनकम थ्रू द मार्केट, इज़ इट पॉसिबल बाय जस्ट गिविंग 3 or 4 hours इन अ वीक, ठीक है. सो आई स्टार्ट माई कंपनी इवन, जो भी मेरी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ अभी, बेसिकली वी आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड दैट कि 3 से 4 घंटे सिर्फ दे के वीक में, पूरे वीक में कैसे वी कैन जनरेट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थ्रू मार्केट. बट टू बी ऑनेस्ट मैं अभी जैसे कर रहा हूँ विद अ जॉब, आई एम जनरेटिंग अ गुड रिटर्न, आई बिलीव. सो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द टाइम विच आई मैनेज. सो आई थिंक कि मैंने आपको कैलेंडर दिखाऊँ अपना एंड आई शो यू क्लियरली, ठीक है, मैं कैसे टाइम मैनेज कर रहा हूँ. मेरा टाइम मैनेजमेंट
कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे मैं कैसे करता हूँ, सो दैट आई कुड एबल टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, आई कुड गिव टाइम टू माई लाइक जॉब जो होता है, उनके वर्क्स जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर मैं काम कर लेता हूँ. एट द सेम टाइम आई कुड एबल टू डू माई ट्रेडिंग एंड मैनेजिंग ऑल दिस यूट्यूब वीडियोज़. आपको रेगुलरली वीडियोज़ यूट्यूब पे देखने को मिल ही रहा है. सो हाउ कुड आई एबल टू डू दैट. सो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़. आई होप मैं आपको अपने कैलेंडर पे लेके चलता हूँ एंड आई विल शो यू माई कैलेंडर. मैं कैसे टाइम वहाँ पे ब्लॉक करके, कैसे टाइम ब्लॉक करके, हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस. सो आई होप आपको मेरा कैलेंडर दिख रहा होगा. जस्ट अ मिनट. टुडे इज संडे, लेट्स मूव. 22 देखो, 23 मंडे. ये ऑलरेडी देखो सारे दिन का ये फिक्स टाइमिंग्स है, मंडे टू फ्राइडे. वीक डेज जितने भी होते हैं उसमें यही मेरा कैलेंडर है बेसिकली. अगर इसमें उसके बाद मुझे कुछ कॉल्स वगैरह ऐड करने होता है, सो आई ऐड ऑल दोज थिंग इन द मिडल. सो आई ट्राई टू वेक अप जनरली बिटवीन समवेयर 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं ट्राई करता हूँ उठने का. बट जब से मैंने ये आई थिंक सो दैट लास्ट 2 मंथ से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ. बट बहुत ही कुछ ही दिन हुए टू बी ऑनेस्ट कि मैं 6:30 के 7 से बीच में उठ पाया. अदरवाइज आई वेक समवेयर अराउंड 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मैं उठता हूँ. एंड व्हेन आई जस्ट वेक, आई जस्ट लाइक गेट फ्रेश अप. उसके बाद कम्प्लीटली 8:30 इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू सिट ऑन माई टेबल एंड चेयर एंड जस्ट लुकिंग like start looking for the markets in the morning hours. Basically in the morning hours I try to find stocks. मैं देखो मैं क्या होता है ना, हाउ डू आई डू. अगर आप ये लास्ट के नीचे अगर देखोगे यहाँ पे ना 2:30 3:30 और उसके बाद अगर मैं आपको पहले के कुछ शेड्यूल अपने दिखाऊँ, सो यू विल गेट दिस. यहाँ पे आई थिंक सो ये डिलीट हो गया, शो नहीं हो रहा. सो व्हाट आई ट्राई इज आई विल शो यू. एक मिनट, आई विल शो यू. बेसिकली ये 8 to आई थिंक सो 10 10:30 11 राइट, ये मार्केट आवर्स होता है. आई विल शो यू इसमें क्या होता है. ग्रीन शो मैं कर देता हूँ. सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज़, अब फॉर एग्जांपल ट्यूसडे के मार्केट का मुझे प्लान करना है. सो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट. सो मंडे को ये 8 to 11 रात का जो टाइम है, क्योंकि एवरी डे आई एम नॉट एबल टू गिव, क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी मुझे रिकॉर्ड करने होते हैं एंड इवन एडिटिंग वगैरह जो होता है आई हैव टू डू इट बाय माई सेल्फ. सो दैट उसमें ये टाइम मेरा जाता है. बट जब मैं यूट्यूब नहीं कर रहा था, सो हाउ आई यूज टू मैनेज इट, जस्ट माई जॉब एंड मार्केट. ये जो रात के 1-2 घंटे होता है, इन द बिगनिंग यू शुड बी लाइक यू विल हैव टू गिव 2 to 3 hours. बट जैसे जैसे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है, यू कुड जस्ट डू दैट इन 1 hour. सो 8 to 11 आई यूज़ टू कीप. यहाँ पे मैं मार्केट रिसर्च करता था मैनुअली. काफ़ी स्क्रीनर्स मैंने बना के रखा है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता है उसके ऊपर मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हो. सो आई वॉज गोइंग थ्रू ईच एंड वन ऑफ द स्टॉक जो भी मेरे सेटअप के बेस पे, जो भी मेरे स्ट्रैटेजी के बेस पे जो भी इंटरेस्टिंग होता था, आई यूज़ टू शॉर्ट लिस्ट ऑल दोस्त. एंड उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके मैं एक वॉच लिस्ट बना लेता था. ठीक है. एंड व्हेन आई यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग 8:30 to 10, इसमें मैं क्या करता था पता है, 9:15 से मार्केट खुलने से पहले 8:30 to 9:15 वो सारे स्टॉक्स में मैं प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान लिखता था. इफ़ आई कुड शो यू माई डायरी, वेयर इज इट, आई विल हैव टू सर्च, आई थिंक सो इट इज़ इन अनदर रूम. अगर मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊंगा, सो यू विल फाइंड कि मैंने प्रॉपर हर स्टॉक नेम, उस स्टॉक में क्या ट्रेडिंग प्लान मेरा होने वाला है, आई यूज टू राइट इट डाउन. मॉर्निंग 8:30 to 9:15 जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लान होता है, कहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ, कहाँ पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ, एवरीथिंग आई जस्ट रोट इट लाइक राइट इट डाउन इन माई डायरी. एंड मैं ज़ीरोदा यूज़ करता हूँ. ठीक है, मैं ब्रोकर ज़ीरोदा यूज़ करता हूँ. एंड नॉट अ रिकमेंडेशन, आप कुछ भी यूज़ करो अगर उसमें GTT ऑर्डर लाइक उसमें अगर ये फैसिलिटी है, सो इट गेट्स हेल्पफुल. मैं क्या करता था, ट्रेडिंग प्लान बना के एंड आई यूज़ टू प्लेस माई GTT ऑर्डर. इस लेवल के अगर ऊपर गया तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा. उसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा देता था जहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस होता था. एंड आई यूज टू पुट माई टारगेट, जो भी मेरा फर्स्ट टारगेट होता है. सो बेसिकली आई ट्राई टू जनरेट लाइक आई ट्राई टू कैच 15 to 20% ऑफ द मोमेंटम इन एनी स्टॉक जिसमें मैं एंट्री करता हूँ. इन एनी स्टॉक 15 to 20% ऑफ मोमेंटम इन नेक्स्ट 4 to 5 days. ये मेरा मेन स्ट्रैटेजी रहता है. मेन दिस इज़ वॉट आई ट्राई टू कैच. सो जो भी मेरा GTT ऑर्डर होता था मैं लगा लेता था, यहाँ पे मेरी एंट्री होने वाली, यहाँ पे मैं मेरा टारगेट होगा, अगर उसके नीचे जाता है तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा. जो भी मेरा लॉस होगा आई विल एक्सेप्ट दैट. सो एवरीथिंग आई यूज टू like put on my system and everything I used to put like मेरा टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ मैं एंट्री पे लगा के मैं आई यूज टू लाइक 9:15 मार्केट ओपन हुआ, देखा अगर कौन से GTT ऑर्डर प्लेस में, एक बार मैं सेक्टर्स देख लेता था, दीज ऑल थिंग्स. उसके बाद अराउंड 10:30 बेसिकली देखो 10 यहाँ तक 10 बजे तक दिया हुआ है इसमें कैलेंडर में, बट 9:40 9:30 तक मैं फ्री हो जाता था.
9:30 तक मैंने फ्री हो गया। उसके बाद आई यूज़ टू हैव माई ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया। आई यूज़ टू हैव लाइक सम फ्री टाइम। उसके बाद फ्रॉम 10:30 आपके जो भी कॉल्स हैं, मैं बेसिकली सेटिंग कॉल्स में जो क्लाइंट्स से होते हैं उनसे मैं बात कर लेता था। और एल्स अगर मेरे दूसरे काम है, कोई अगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम है, कंटेंट से रिलेटेड काम है, तो मैं उस पर फोकस कर लेता था। ठीक है, अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स ढूंढने हैं फॉर माई कंपनी तो मैं उसके रिलेटेड मैं कर लेता था। सो दीज ऑल थिंग्स सिंस लाइक ये 10 से 11 बजे से लेके कम्प्लीटली 2 बजे तक मैं करता था ऑफिस के वर्क। सो यू विल फाइंड कि ये ब्लू है, जो भी मेरा कैलेंडर में ब्लू है, दिस शोज़ कि ये मेरे ऑफिस का काम है। ठीक है, एंड फ्रॉम 2 o'clock लाइक 2 से 2:30 बजे तक मैं लंच, आई यूज टू हैव माई लंच टाइम। 2:30 to 3:30 मार्केट का जो लास्ट आवर होता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ आवर्स से मोमेंटम रहते हैं, लास्ट कुछ आवर्स में आप पोजीशन बना सकते हो जो स्टॉक्स अच्छे लाइक परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन द लास्ट 2 hours 2:30 to 3:30 एक बार मैं फिर से मार्केट को 1 घंटे आधे घंटे जो होता था 45 मिनट्स, आई यूज टू गो थ्रू ऑल द सेक्टर्स, क्या परफॉर्म किया है, कोई स्टॉक्स क्या ब्रेकआउट दिया है जो मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, या फिर कोई अगर मिसिंग हुआ है, या फिर कोई भी जीडीटी ऑर्डर ऐसा कुछ मिसप्लेस हुआ है। सो आई यूज टू डू ऑल दिस थिंग्स इन फ्रॉम 2:30 to 3:30। मार्केट खत्म, आई यूज टू कम्प्लीटली ऑफ माई लाइक आई यूज टू कम्प्लीटली कट माई ज़ीरोधा जो भी है यहाँ से मैं इसको हटा देता था पूरे। उसके बाद लाइक 3:30 और 4 आई जस्ट यूज टू हैव अ कॉफ़ी। आफ्टर दैट फ्रॉम 4 onwards आई यूज टू अगेन लाइक जो भी मेरे ऑफिस का काम होते थे, अगर कोई प्रोजेक्ट्स होते तो देन दैट। अदरवाइज बेसिकली आई लव टॉकिंग टू क्लाइंट्स, आई लव लाइक टॉकिंग टू देम, आई वाज इन अ क्लोजिंग, आई लव लाइक जो भी डील्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होता है लाइक दोज आर एक्सपेंसिव, दोज आर अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज़ का एक सिंगल प्रोडक्ट है हमारे लाइक हमारे सर्विस जो भी है हमारे कंपनी का जिसमें मैं काम करता हूँ। सो आई यूज टू जस्ट टॉक टू द क्लाइंट्स हाउ दे आर परफॉर्मिंग, कैसे वो काम हो रहा है, वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं, दीज ऑल थिंग्स। सो ये 4 से 5 जो भी होता था, यूज टू टॉक टू द क्लाइंट्स एंड यू कुड सी जस्ट अ मिनट ऑफिस आवर्स, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इसमें ऑफिस आवर्स मैंने डाला। ठीक है, यहाँ से आई ब्लॉक दिस स्लॉट समय 6 साढ़े 6 तक, ऐसा कुछ नहीं है लाइक एज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, दिस इज़ नॉट श्योर कि आप 7 बजे तक काम करो, 6 बजे तक काम करो। आपके अगर प्रोजेक्ट्स हो गए, अगर आपने काम कंप्लीट कर दिया है, सो अगर आपके 6 घंटे के काम आपने 1 घंटे कर दिया, दैट्स ऑल फाइन, आप एंजॉय कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। सो ये जो भी काम होता है 4 से 6 करके आई यूज़ टू लाइक जो भी मेरे ऑफिस के काम होते थे मैं कंप्लीट कर लेता था, ट्राई करता था 6 बजे तक कंप्लीट हो जाए। 6:30 7 8 यहाँ तक जो भी है ये 2 घंटे मेरे फ्री टाइम है। आई विल ड्राइव, आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल लाइक गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, जो भी है मैं आई विल डू दैट, आई विल स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। 8 o'clock बैक टू मार्केट आवर्स। शाम का टाइम देखो मेरा यूट्यूब रहता है, इसी के लिए लाइक दैट इज़ द रीज़न मैं हर दिन 8 से 11 मार्केट नहीं दे सकता। एंड आई हैव बीन गिविंग दिस सिंस लास्ट आई थिंक सो लास्ट 3 months, और उसके पहले भी मैं मार्केट में सिंस लास्ट 3 years से हूँ। सो नाउ आई थिंक कि मैं थोड़ा उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ आ गई। आई कुड नॉट, आई लाइक डोंट नीड टू गिव 3 hours, आई जस्ट डू गिव इट फॉर 1 hour और मुझे मेरे वो सारे स्टॉक्स मुझे मिल जाते हैं। सो दैट बट इफ़ यू आर अ बिगनर, इफ़ यू आर जस्ट इन टू अ मार्केट सिंस लास्ट 1 साल 1.5 साल से हो, देन यू हैव टू गिव 3 hours सो दैट यू कैन लाइक आप प्रैक्टिस उससे अच्छे से हो जाए, राइट। सो 8 से 11 मैं हर दिन तो मार्केट को भी नहीं दे पा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे यूट्यूब वीडियो शूट करने होता है, उसके एडिट्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ट्रेडिंग के कुछ कैपिटल में आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज, आई एम जस्ट टॉकिंग टू द इन्वेस्टर्स एंड ट्राइंग टू गेट सम फंड फ्रॉम देम। सो अगर उसके लिए काम होता है तो उनके लिए एक बार बात करनी होती है, मीटिंग्स होता है। सो दैट इज़ वॉट आई डू बेसिकली, बट आई ट्राई टू गिव 1 hour एटलीस्ट 1 hour इन एट द नाइट कि मैं प्रॉपर दे सकूँ और कल के जो स्टॉक्स हैं वो मैं फाइंड आउट कर सकूँ। सो दिस इज़ माई कैलेंडर, यू लाइक गेट अ आइडिया। देखो अगर आप टाइम प्रॉपरली मैनेज करते हो, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू एज वेल कि आप जॉब और बिजनेस दोनों मैनेज कर सकते हो। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे, अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो या फिर इंट्राडे कर रहे हो, दैन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर जॉब और and trading both. But अगर आप सिर्फ a source of income business, if you are looking this as a business and you want to generate a second source of income, then you are not required to give like 24 hours 12 hours to the screen. You are not required to do that. आप अपने जॉब भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस कर सकते हो। and this is how I plan, this is how you also can plan. I am not recommending you कि आप यही फॉलो करो, what works best for you you could follow that. So I think so that कि यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है, all points got covered and यही था जो बोलना था आपको, यही शेयर करना था। इन द स्टार्टिंग आई शेयर माई स्टोरी, उसके बाद मैंने प्रॉपर कैसे मैं टाइम मैनेज करता हूँ, शेयर दैट। एंड आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो काफ़ी लंबी वीडियो, आई थिंक सो 20-25 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड
स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। काफ़ी अच्छे ऐसे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, काफ़ी मैं अपने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, एंड रिलेटेड टू जो भी मेरी ट्रेडिंग है, स्टॉक्स हैं उनके, जो भी मेरे वॉच लिस्ट होते हैं, आई ट्राई टू शेयर दैट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।